So to start the topic, turning effect of force, equilibrium and center of mass. By definition, turning effect of force or moment of force can be defined as the turning effect of a force is termed as the moment of a force. और इसका फार्मूला होगा moment of force equal to force into perpendicular distance from the pivot. And unit is Newton meter. अब इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा दैट इज F into perpendicular distance D. इसके लिए हम ये एक डायग्राम बनाते हैं. Let's suppose there is a rod which is fixed from one point, and this fixed point is named as pivot. And when you applied the force F and this distance, pivot से लेकर F तक का जो distance है, this is called perpendicular distance. If the force is applied in upward direction, so this will rotate the rod in this direction. And this is opposite to the clock. So this is called anti-clockwise movement. तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं और उसमें टर्न प्रोड्यूस हो जाए, so that turning effect produced by the force is called moment. This one. और इसका फार्मूला ये होगा मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और इसका ऐसे यूनिट होगा न्यूटन मीटर. कैपिटल N स्टैंड फॉर न्यूटन, M स्टैंड फॉर मीटर. अच्छा, अब हम आगे इसकी जरा एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो. लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे पिवट क्या चीज है, जो फिक्स पॉइंट है. उसकी डेफिनेशन आगे देखें, हम रीड करते हैं इसको. See, on this page, this is the definition. This one, pivot. Pivot is the point about which the object rotates. Is called as the pivot, or it is another name is fulcrum. So वो point जिसके about कोई भी body rotate करती है, उस point को आप कहते हैं pivot या fulcrum. इसको हम एक क्वेश्चन, ये तो हमारे पास हो गया moment की definition. The turning effect produced by the force is called moment, or pivot is a fixed point about which a body can rotate. अच्छा, अब ये rotation जो है, you know about that, कि rotation would be like two types. One is in the direction of clock and one is in the direction of or opposite to the clock. So moment would be two types, as you can see in this example. Clockwise movement and anti-clockwise movement. इसको पहले हम इस एक डायग्राम से समझते हैं. फर्ज करेंगे आपके पास एक रॉड है which is balanced on some fixed point. There is a weight on one side and another weight on the other side. This point is taken as pivot, fixed point. So this weight try to rotate the rod in this direction, which is called clockwise, and the other weight try to rotate the rod in this direction. This is called anti-clockwise. As जैसे आपने पार्क्स में स्विंग लेते हैं सीसा, तो सीसा में क्या होता है कि एक स्टूडेंट एक साइड पे बैठता है और दूसरा स्टूडेंट दूसरी साइड पे. तो वन प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट एंड अदर प्रोड्यूस द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं.
इससे आपको ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा. Here is a device, as you can see this. Okay. In this device, there is a lever. This is the lever. And a force is acting downward, which tried to rotate the rod in this direction. And this point, H, this is taken as pivot. Here is some material being crushed by the lower end of this rod or lever, and the force exerted by this crushed material in upward direction. So this force is in upward direction, this way. Okay. अब देखें ये जो फोर्स है 20 न्यूटन, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट वो कितना आ रहा है 300 380 प्लस 120. आपने ये पूरा डिस्टेंस करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. और ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं? दैट प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. और ये जो फोर्स है ये रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी और ये कौन सा मोमेंट हो जाएगा? क्लॉकवाइज मोमेंट. अब मोमेंट के फार्मूला हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 20 न्यूटन की वजह से कितना होगा? 20. और इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 380 प्लस 120 500. मीन ये हो जाएगा 10,000 न्यूटन मीटर. That is the moment produced by 20 Newton force, and this is anti-clockwise moment. Other type of moment which is clockwise moment, इसके लिए force F लग रही है, F, और इसका distance कितना है? 120 from the pivot. So there are these two types of moments. अब F की वैल्यू निकालनी है और साथ इसमें देखें the lever arm rotates about the hinge H at its right hand. A force of 20 Newton acts downward on the left hand end of the lever arm. The force F of the crushed material on the plungers acts upward. Ignore the weight of the lever arm. अब इसमें clockwise movement is this or anti-clockwise movement is this. And as the rod is balanced, so clockwise movement should be equal to anti-clockwise movement. इनकी वैल्यूज पुट कर दें. दिस इज 120 into F और दिस इज 10,000. अब इसको आप सॉल्व कर लें. F is equal to 10,000 divided by 120. So this is the answer. इसको फर्दर सॉल्व कर लें. इसके आंसर देख लें क्या आ जाते हैं. 1000 को 12 से डिवाइड करती हैं तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. दैट इज फोर्स. और फोर्स का जो यूनिट होगा दैट इज न्यूटन. जी 1000 divided by 12, 83.3 Newton. That is the answer. जी बेटा, is it clear? ये समझ आ गई एग्जाम्पल?
जी सर। गुड हो गया। जरा वेट कीजिएगा, मैं इसको रेस करके आगे चलते हैं। अभी तक हमने 3 चीजें देखी। एक मोमेंट क्या चीज है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा या रेस्ट में होगा तो उसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखिए, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा उसका जो एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके। राइट बेटा? राइट सर। ओके, अब हम आगे आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कंडीशंस फॉर एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस ऑब्जेक्ट। बैलेंस is this one, equilibrium, and this is also named as condition of equilibrium. एक मिनट बच्चे जरा वेट कीजिएगा प्लीज। ओके बेटा, अब हम देख रहे हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम या बैलेंस पोजीशन में होगी तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। And there are 2 conditions of equilibrium. Number 1, this, there is no resulting turning effect. मतलब उसका clockwise moment is always equal to anti-clockwise moment हो। और second condition ये है, there is no resultant force. मतलब sum of all the forces, sum of all the forces should be 0, or you can say resultant force should be 0. So conditions, आपको ये याद रखना है कि conditions of equilibrium या conditions of balance
ये दो हैं, नंबर 1 रिजल्टिंग टर्निंग इफेक्ट मस्ट बी 0 एंड रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0। जी बेटे, ये समझ आ गया आपको? सर मुझे इतनी अच्छी समझ नहीं आई इसकी। अच्छा, दोबारा सुन लें। देखें, जैसे हमने कहा था ना कि ये एक रॉड है, ये एक वेट इस तरह हैंग कर रहे हैं और एक वेट इधर हैंग कर रहे हैं। ये रॉड बैलेंस या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कब होगा? जब इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये दोनों इक्वल होंगे। दिस वन, ठीक है? ये पॉइंट समझ आ गया? क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। जी सर। उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने क्या है, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। मतलब ये फर्ज करें एक बॉडी इस तरह से है, रॉड है, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स नीचे लग रही है और 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। तो 10 माइनस 10 जीरो 0। जीरो। इसने कहा है कि देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। ओके। तो दो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम के लिए, नो रिजल्टिंग टर्निंग इफेक्ट एंड नो रिजल्टेंट फोर्स। बस इतना लिख देना आप। सही है। ओके जी, अब हम आगे आते हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन और इसका करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारा। अच्छा, अभी हम जो ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये बेसिकली एक रूल की फॉर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे। और वो रूल क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट is equal to the sum of the anti-clockwise moment about the same point। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली अभी हमने जैसे कहा था ना कि रॉड बैलेंस है, बैलेंस कब होगा? जब उस पे कोई रिजल्टेंट या टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा, दोनों तरफ से रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट। इस प्रिंसिपल को पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। इस एग्जांपल में उसने क्या चीजें यूज करी हैं? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट must be equal to sum of anti-clockwise moment. We are taking a rod which is balanced by 4 weights. एक weight हमने यहाँ ले लिया, एक ये weight ले लिया. This is taken as W1, W2. This is taken as W3 and this is W4. 2 weights on the right side and 2 on the left side. And this is point pivot. अब इनके डिस्टेंसेस देखते हैं। इसका डिस्टेंस आ जाएगा D1, W1 का, W2 का हो जाएगा D2 from the pivot. This is taken as D3 and this distance is taken as D4. अब ये जो दो वेट्स हैं, ये दोनों वेट्स रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे और ये दोनों वेट्स जो हैं ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट W1 और W2 का दोनों का मोमेंट अलग अलग निकालने और उनको ऐड करने,
वो सम ऑफ सर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। जी बेटा। ये जो W1 W2 है ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि बच्चे ये क्लॉक की डायरेक्शन में जा रही है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है ना क्लॉक में 1 2 3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और ये इसके अपोजिट जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो ये सही। क्लॉक की डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों। ओके। और ये जो है W3 W4 ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही। तो इसलिए सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, तो इसको आप एज इट इज याद करेंगे। क्लियर है? जी जी। गुड। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको फर्दर इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखें, ये पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म आयरन बार। अच्छा, अब ये कुछ की वर्ड्स हैं जिनको आपने साथ साथ अंडरस्टैंड करने। जब भी यूनिफॉर्म होगा वर्ड, इसका मतलब भी बैलेंस होगा। अब बैलेंस होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा। तो ये बार बी है आपके पास, दिस वन, दिस होल ऑफ वेट 30 न्यूटन। ये इसका वेट एक्ट कर रहा है इसके सेंटर पे। एंड लेंथ 1.4 मीटर, इसकी टोटल लेंथ रॉड की दिस वन वो 1.4 मीटर है। The bar is being used to lift one edge of a concrete slab S. ये स्लैब है जिसको लिफ्ट किया जा रहा है। इस तरफ यहाँ पे रॉड रखा है, यहाँ पे स्टोन रखा है, और दूसरी तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे। A stone placed 0.2 meter from one end of B acts as a pivot. A force of 40 Newton pushing down at the other end of the bar B is just enough to lift the slab and hold it as shown. अब आप देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो है पिवट ये आ गया। फिर उसके बाद हमने देखना है फोर्सेस कौन सी हैं। एक फोर्स ये नीचे की तरफ लग रही है, सेंटर ऑफ इसके रॉड का जो वेट है ये भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्लैब को लिफ्ट किया जा रहा है। अब अगर हम देखें इसके जो फोर्स 40 न्यूटन है, इसका डिस्टेंस पिवट से ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये अबाउट 1.2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ थी आपके पास 1.4, उसमें से 0.2 को माइनस कर दिया, तो पिवट से आपने डिस्टेंस लेना है 40 न्यूटन फोर्स का, तो वो ये आ रहा है 1.2, और दूसरा वेट है 30 और इसका डिस्टेंस आ रहा है 0.05। अब जो ये दोनों वेट हैं ये इसको क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं, और ये जो स्लैब है, स्लैब विल रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों जो होंगे क्लॉकवाइज। अब हम इनको इक्वलाइज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने सारा सोल्यूशन इसका लिख दिया, इसको जरा आप एक दफा अंडरस्टैंड कर लें। Clockwise movement and anti-clockwise movement produced by the weight of the rod and slab
ये देखिए डायग्राम हम दोबारा देख रहे हैं और साथ मूवमेंट को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। See, due to the weight of the bar plus due to the 40 न्यूटन फोर्स, ये जो दो फोर्सेस एक ये लग रही है और एक ये, इसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द बार बी। इसका आ गया 30 इंटू 0.5 एफ इंटू डी डिस्टेंस और इसका भी एफ इंटू डी, और दोनों का अलग अलग फाइंड करके ऐड किया है तो टोटल आ गया 63 न्यूटन, जो कि इन दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं स्लैब की वजह से ये भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसका सर 0.50 कहाँ से है? बेटे ये जो इसमें इसका ये देखें, ये हमने जो रॉड की लेंथ निकाली थी ना, दिस वन, ओके सर। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। टोटल लेंथ इसकी 1.4 थी, पहले आपने 0.2 को माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ गया, फिर आपको मालूम है कि 1.4 का हाफ कितना होगा, 0.7, वो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से देख ले, ये क्योंकि ओके ये सेंटर पे होगा, यहाँ से यहाँ तक 0.7 आ जाएगा इसका डिस्टेंस, दिस वन। और 0.7 में से जब 0.2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। आप समझ आ गया? जी। गुड। अच्छा, अब इसके बाद आप जो है इसमें से पॉइंट, ये डिस्टेंस दोनों का निकाल लिया, उसके बाद मोमेंट फाइंड कर लिया, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और उसके बाद उनको इक्वलाइज करके आपने इसका आंसर निकाल लेना। लास्ट में हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट। मोमेंट हम कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक स्पैनर, स्पैनर जो है जितना लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सीजर में मोमेंट प्रोड्यूस होता है, टैप्स में प्रोड्यूस होता है, नट क्रैकर्स में यूज होता है, सीसा में मोमेंट ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं। राइट बेटा, समझ आ गया यहाँ तक आपको? जी सर। शाबाश। तो अब कुछ क्वेश्चन अब इसके रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करेंगे। ओके। अभी आपने ये करना है, इसको अच्छे तरीके से हैंडआउट्स को रिवाइज करने, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने मेरे से डिस्कस करने।